29 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸਦੇ ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭੀੜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮੋਬ ਦੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਵਿਡੋ ਕਲੋਨੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਆਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 1986 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਜੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ-ਬਾਰ, ਵਪਾਰ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਡੋ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਪਰੀ ਕੌਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਗਈ ਦੌੜ ਕੇ, ਗਿਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ, ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੱਜਣ? ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ। ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਟੈਂਪੂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਾਇਆ 2-3-4 ਜਣੋਂ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਸਾਰੇ चिल्ला रहे मेरे पड़ोसी गरीब आदमी है, गरीब आदमी, किसी की नहीं सुनी। खुद सज्जन को माराया, होकी लाया, फरशी लाया, डंडे लाया, लाठी लाया। सज्जन कुमार अपने बच्चों नाल सी, सारे जाट दे मुंडे सी, सारे गुजर सी, सारे आए सी। सुल्तानपुरी असी रहिंदे सी, 250 नंबर है मेरा मकान दा, उधर रहिंदे सी। उन्होंने ले गए। फिर एक बच्चा खड़ा सी छोटा जा, इन्ना मुंडा सी, इधर मुंडा वो खड़ा सी, तो सारे पड़ोसी कह रहे ये सरदार दा मुंडा है, ले जाओ इनू। पड़ोसी दा सी कह रहे ले इनू भी मारो, नहीं तो ये सांप बनेगा, ये भी डंग मारेगा। उन भी बेचारे ने मारिया, बच्चे नू भी मार दिता, मार के उन्हें सुट दिता सड़क ते ही, उन्हें सुड़क दिता। वो भी बेचारा मर गया, बच्चा छोटा जा। इन्ना बच्चे ने की लड़ाई करी? नहीं करी ना लड़ाई, उन्हें भी मार दिता। असी भी नहीं करी लड़ाई, तो लड़ाई तो किसी ने करी नहीं, सरदारों ने तो किसी ने करी नहीं, सब अपने अपने घर बैठे थे गरीब आदमी। फिर करनेल सिंह जरनेल सिंह तो मेरी भैन दे मुंडे सी, जवान से कवारे, है ना। ओदा पापा दा शेवा सिंह, माँ दा भगवानी कौर नाम सी। वो थोड़ा साढ़े से दूर से उन्होंने देखा, किसी ने गया वो भी सरदार खड़े है नहीं, कहता है पहले इधर देख ला, फिर उन्होंने भी सुटांगे मारांगे। वो बेचारे देख रहे तमाशा, उन्होंने की पता भाई असी सानू मारेंगे। फिर गए, दोनों मुंडे ने भी मार दिता, मार के गड्डी विच पाया और ले गए। पता नहीं किधर ले गए किधर नहीं ले गए। हाँ, इन्नी चौरासी हुई, सारी हमारी गुरुद्वारा सी सारा फाड़ दिता, इतना हमला किया। मेरा बुढ़ा सी सुसर मेरा, उन्होंने किसी ने भी नहीं मारिया। पूरी भीड़ विच घूम रहा, गालां दे रहा माँ दी भैणां दी, उन्हें नहीं मारिया, किसी ने भी नहीं मारिया। जेड़े जवान मुंडे देख रहे हैं या कुछ, उन्होंने मार रहा। ते 30 ते 31 तारीख सी हमला होया सी।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ बैठे सी, कोई आ रहा कह रहा सिख सिख नू लुकाओ लुकाओ, गुरुद्वारा तोड़ रहे, सिखों नू मार रहे। हम कह रहे ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ नहीं होता है, वाकई में मार रहे। मारते मारते 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए मारदे नू, 3-4 दिन हो गए वे मार रहा। मैं सज्जन कुमार नू देखिया, हाँ जी। मैं ना सज्जन कुमार, ये तो सज्जन कुमार है। मैं कहा माँ दे नाल आया सी एक दिन मकान देखने वास्ते, किसी का लेने वास्ते, मज्जां वास्ते ने। मैं कहा तो सज्जन कुमार है। किसी ने मैं पूछा, मैं कहा कौन है? कह रहा सज्जन कुमार है। मैं सज्जन कुमार ही मार रहा सानू। मैं सज्जन कुमार कहते सज्जन कुमार है। मैं जानती नहीं सी सज्जन कुमार नू। मारिया, फिर मार के ले गए उन्होंने, पता नहीं किधर ले गए उन्होंने भी मारिया। 2 मुंडे सी, इन्हां दे मामे दे मुंडे सी, 6 वार उन्हां दे मामे दे मुंडे सी, उन्होंने भी मारिया। जरनेल और करनेल सी, दोनों मुंडे ने तकड़े सी, बस पूछो मत जाना। और बाप गरीब सी बेचारा बहुत ही। 30-31 तारीख को मारिया। फिर आए मकानों च ढूंढ रहे, मकानों में कोई है तो नहीं, कोई मारे या कुछ करें। बाहरों पकड़ रहे, सड़कों पे मार रहे, मद्रासी क्या मारे, जाट क्या मारे, गुजर क्या मारे। ऐसा हल्ला मचाया, ऐसा हल्ला मचाया, सारी सुल्तानपुरी पूरे में फैल गए मारने के लिए। उसको मारा, सबको मार ही रहे हैं। अब एक लड़का बाहर से आया था सिंगापुर से, बेचारी आज भी तुम्हें मिलाऊं उसकी माँ से ना, देखोगे ना आप ना रो पड़ोगे। पागल हो गई उसकी माँ तो बिल्कुल मंजीते पे। एक मैंने एक माँ है, दोनों पागल हो गई हैं। एक ही भाई था, 4 बहनें थी, दोनों माँ बेटी पागल हो गई हैं। खाट पे पड़ी हैं चंदर बिहार में। उसको भी सिंगापुर से आया था, पहले तो उसमें बेल्ट में उसके पैसे थे, वो निकाला, फिर उसको लेके आए बाहर। उसके ऊपर तेल डाला, मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी, बेचारा जल गया। पानी मांग रहा, पानी कौन दे? फिर नाले का पानी मैंने बुक्का भरया और नाले का पानी उसके मुंह में डाला, मर गया। 7 साल में आया था। माँ उसी दिन से माँ पागल हो गई है। सुल्तान वहाँ चंदर बिहार रहती है। इतना जुल्म करया हमारे साथ सज्जन कुमार ने, तो वो अभी जेल में पड़ा है ना, जिंदा तो है ना। हमारे तो 40 साल हो गए इनको, 40 साल से हमारे बच्चों ने तो नहीं देखा ना हमारे बच्चों ने देखा, ना हमारे बेटियों ने, ना बच्चों ने, छोटों ने देखा, किसी ने भी नहीं देखे। बाप का प्यार तो देखा ही नहीं ना भाई, कैसा बाप का प्यार है। कभी खाया कभी नहीं खाया खाना, ऐसे करके इसने सज्जन कुमार ने हमारे साथ बहुत जुल्म करा है। हम तो, मेरी तो यही उम्मीद है, मेरी यही मांग है, इसको फांसी आए सज्जन कुमार को। हमारी यही आस है, इसको फांसी आए। ये भी जिंदा बैठा है जेल में तो बैठा है ना। सब मिलाते हैं, बच्चे भी, बहू बेटे भी, सब जाते हैं। और हमारे चले गए, हमारे तो दिख ही नहीं रहे, सिर्फ ये फोटो दिख रहा है। इसको क्या करें, फोटो को क्या करें? ऐसा मारा हमारे आदमी को, बहुत बुरी तरीके से मारा। एक को टायर नीचे लगाया, ऊपर नीचे सिर करा, उस पर पैर बांध के टायर के साथ उसमें आग लगाया। आग लगा के वो जल रहा। उसकी बीबी को लेके आया, कह रहे देखो चल के तुम्हें बुला रहा है। वो देखा तो वो जल रहा है। वो रोती रोती बेहोश वहीं गिर गई बेचारी। टायर से जलाया उसको, टायरों के साथ जलाया। बहुत हमारे साथ इसने सज्जन कुमार ने बहुत जुल्म करा, पर इसको फांसी देनी चाहिए सरकार को। मोदी क्यों नहीं दे रहा फांसी? इसको क्यों डरता है इससे? कांग्रेस से तो क्या करेगा, कांग्रेस से तो क्या करेगा? इसको फांसी देनी चाहिए ना सज्जन कुमार को, तो फांसी आनी चाहिए। हमारे साथ इतना जुल्म करा, इतने सिख मारे हमारे, हजारों सिखों मार दी सुल्तानपुरी में। घर किसके 2 मरे, किसके 4 मरे, किसके 3 मरे हैं। तो इसको फांसी देना चाहिए ना। हम रोते तो उसके बच्चे भी रोए ना जब फांसी आए। तो मेरे पास भेजते, कह रहा आंटी के पास 2-3 आदमी आए मेरे पास, कह रहा 3 बोरी पैसे भेजे थे मेरे पास। सज्जन कुमार ने 3 बोरी पैसे भेजे थे। मैं तो भाई अनपढ़ हूँ ना, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अब तो बीमार रहती, पहले मैं सही थी थोड़ी। मैं एक बोरी खींच के ना चौकी में ले जा रही, गारंटी चौकी में मत ले जा। मैं एक पेटी ले गई पैसे निकाल के, तो मैंने कहा दिखाऊं जाके हैं क्या है ये पैसे, ये नकली है असली है? वो उठा के ले गए। कह रहा मेरा बेटा गुजर गया, एक बड़ा वाला ना। कह रहा एक तो मर गया, फिर दूसरे को भी मारेगी क्या? गवाही बदल ले। कागज लगा के दुकान के ऊपर लिख के, इसको बचाओ बेटे को, नहीं तो इसको भी हम मार देंगे। मैंने प्रधान जी को बताया, आत्मा प्रधान हमारा, उसको बताया
फिर और प्रधान ने दो चार उनको सबको बताया। फिर मैं गुरुद्वारा में रकाबगंज ले गई, वो चिट्ठी उनको बताया जाके। मैंने कहा ऐसे ऐसे कांड मेरे साथ हो रहा है। फिर मेरे साथ सिक्योरिटी लगा दी उन्होंने, पुलिस वाले लगाए। मैं कहा कल मुझे ही मार दें, कोई पता ही नहीं है, पर है बहुत गंदा, इसको फांसी देना चाहिए। आप हमारी ये है, हाथ जोड़ के बेनती करती हूँ मोदी को, इसको फांसी आनी चाहिए सज्जन कुमार को बस, और कोई हमारी मांग नहीं है, इसको फांसी आनी चाहिए सज्जन कुमार को ना, फांसी आनी चाहिए। हम मोदी को बेनती कर रहे हैं भाई इसको फांसी दे। जितने भी कोर्ट कचहरी में बैठे ना सबको फांसी आए जो हमारे साथ चुरासी करी इन्होंने। थोड़ा पहला जो 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ? ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ बैठे सी असी दोनों मियाँ बीबी चाय पी रहे सी, ते बच्चे मुसलमान के घर में, चारों बच्चे मेरे मुसलमान के घर में सी बेचारे। उसने बचाया मेरे बच्चों को, तो मेरे बेटे 4 थे, 2 बेटी थी, उनको उन्होंने बचाया। घर में छोटा सा घर था, मंजी के नीचे डाल दिया उन्होंने सब बच्चों को। हाँ, और हम बैठे थे अंदर। किसी ने देख, मैं निकली ना तो उन्होंने कहा भाई अंदर कोई होएगा। सरदार जी भी निकल आए। जैसे निकले सरदार जी उसको खींच के लाठियों से पहले तो उसकी टांगे तोड़ के वो गिर गया। उन्होंने टम्पू में डाल दिया। 4 लाशें डाली टम्पू में, 4। इतने गंदे लोग थे, 2 कर्नेल जर्नेल की, 1 लड़के की, इतने की ये नहीं पता लगा कहाँ डाली है, कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए, ये भी नहीं पता लगाया। हमने पूरे 15 दिन ढूंढी, लाशों को नहीं मिले हमें। ये सज्जन कुमार ने कराया हमारे साथ, तो नहीं तो कोई नहीं था करने वाला सुल्तानपुरी में। ये खाली सज्जन कुमार ने कराया। मारो मारो सिखों को, मारो मारो, बस यही हल्ला मच रहा, मारो मारो सिखों को मारो। सबसे छोटी मेरी 1.5 साल की लड़की थी। अब हम उसको कहाँ डाले हैं बेचारे ने। फिर भी उसने ले ली, मुसलमानी ने, कह रहे हम पिलाएंगे इसको, खाना वाना खिलाएंगे, आप थोड़ा बच्चों का ध्यान रखो। फिर हम बच्चों का ध्यान रखें, कहाँ रखें बच्चों का ध्यान। सबको कपड़े नहीं सिर पे, कपड़े उतार के सारे ले गए, सामान सारा ले गए, लूट के ले गए, घर लूट के ले गए, कुछ भी नहीं बचाया घर में। इतना सा टुकड़ा था, किसने दिया मेरे को कपड़े का, मैंने सिर पे रखा। सज्जन कुमार ने सारी गठड़ी वठड़ी बांध के सामानों की इनकी कट्टों में भर भर के ले गए। सारा पूठगाम पड़ता है सामने, सुल्तानपुरी के सामने, वहाँ से सारे आए लूटने के लिए घर हमारा, सारे ले गए उठा के। हम तो कहते चलो हमारा भी गया, कोई बात नहीं। जब जर्नेल कर्नेल सिंह गए ना, ये तो प्रधान का लड़का तो कुछ भी नहीं है, उनके आगे ऐसे तकड़े थे, सगाई का रखी थी, शादी की तारीख थी, उनको मारा तो सब बेहोश हो गए। उनके माँ बाप, होश भी नहीं उनको कुछ को भी, वो भी मर गए बेचारे बाद में। फिर इसने सज्जन कुमार ने कराई। हमारी बेनती है मोदी को, सज्जन कुमार अंदर तो है मगर इसको फांसी देनी चाहिए। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी मोदी से कोई लड़ाई नहीं, बस इसको फांसी आए सज्जन कुमार को, बस और कुछ नहीं। 1 तारीख से लेके 30 तारीख से लेके 31 तारीख से लेके मारते रहे सबको, ये नहीं हटे नहीं। पुलिस वालों ने मुझे थप्पड़ मारा है, एसएचओ ने मारा मेरे को थप्पड़। हमारे गुरुद्वारा जला रहे, फाड़ के चप्पलों से मार रहे हैं। किताब जो हमारी है गुरु ग्रंथ साहब की, उनको जब मार रहे तो किताबों को, तो मेरे को थप्पड़ मारा, मेरे को और मेरी हमारी बहू थी, उनको थप्पड़ मारा। कह रहा तुम्हें लग रही इतना नेता मर गया है, बड़ा नेता मर गया, हमने थोड़ा मारा है। मैंने कहा नेता मर गया तो किसने मारा है उसको मारो, उसका खानदान को मारो, हमें क्यों मार रहे हो? हाँ नहीं, कह रहे हट जाओ नहीं तो आग लगा देंगे खड़े खड़े को। हमें बोल रहा, मैं कहा लगाओ भाई, हम तो खड़े हैं, लगाओ आग। सज्जन कुमार साथ में था, पुलिस वालों के साथ में भी था सज्जन कुमार। सुल्तानपुरी में गया, सी ब्लॉक में गया, सारों में गया, मतलब 30 से लेके 1 तारीख से 31 तारीख तक, 2 तारीख तक भी हल्ला होता रहे। ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ 1986 ਚ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਘਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ? पहले सुल्तानपुरी से 250 नंबर है मेरा मकान। ਉਹ ਵੱਡਾ ਸੀ ਘਰ? नहीं, वो भी मेरा घर सी उधर, क्या करे छोड़ के आगे, डर के मारे अब तक कोई नहीं जाता है, बच्चे भी नहीं जाते हमारे उधर, डर के मारे किसको दे रखा है, रहते हैं जिनको डर नहीं। भाई हमें तो डरे, हमने आदमी गंवा चुका है, हमारा परिवार सारा गया,
देवर जेठ चले गए, क्या करें फिर हम वहाँ जाके, नहीं जाते। ये हाल, अब 2 लड़के बाद में चले गए, ये हाल हो गया हमारा। बीमार रहते हैं हम तो हर टाइम। मगर सज्जन कुमार को हमारी बेनती है, और इसकी मोदी को हमारी बेनती है, बस सज्जन कुमार को फांसी दे, हमारी कोई और मांग नहीं है, सज्जन कुमार को फांसी आए। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਨ ਉਹ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਦ PTC ਨਿਊਜ਼, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਮਲ।